नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। कितने ही ब्लेस हैं वो संगत जो गुरबाणी शब्द सुन पाती है। बहुत ही अच्छी गुरबाणी शब्द सुने आज। महाराज की कृपा बनी रहे। हम सब धन्य हैं। आज एक बार फिर हम सब इकट्ठे हुए हैं लाइट और डिविनिटी का सत्संग सुनने के लिए। लाइट और डिविनिटी का आज 97वां सेशन है। गुरुजी महाराज की असीम कृपा है कि आज ओल्ड संगत गुरुजी महाराज की ब्लस संगत शालिनी खेरा आंटी जी उपस्थित हैं अपना सत्संग पढ़ने के लिए। और सेशन को इनिशिएट करने के लिए अंजू आंटी उपस्थित हैं जो कि सेशन को इनिशिएट करेंगी। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए गुरु परिवार की तरफ से आप दोनों का स्वागत करता हूं और अंजू आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू अंजू आंटी। जय गुरु जी। Jai Guruji, Sangaji. Firstly, I am not Anju, I am Annu Munjal. Sorry, uncle, to correct you. जय गुरु जी। अनु हाँ अनु जी, मंजाल आंटी। हाँ जी. So Jai Guruji, everybody. महाराज जी पहले अंजू बुलवाना था। ऐसा कुछ नहीं अंकल, प्लीज सॉरी. Okay. Jai Guruji. So today we'll uh, share our experience of how the journey, lovely journey was with Guruji. Shalini is one of my best friends, and grace to Guruji only. He made us the best friends because जब हम जाते थे, तो I never knew who Shalini was. But Guruji Maharaj told one day that to Shalini, "ऐ तेरी best friend है." And since that time, we are the bestest. And honestly, she's my favorite, one of the most lovely Sangat I ever know. And so today she will share her own satsang and read it out also. And she is amazing. And so Guruji का इतना महिमा और इतना कुछ बताने के लिए है उनके पास. So we will tell Shalini to start the satsang. And in between, I'll keep talking about Guruji, asking her also the lovely journey that we shared. And I met Guruji in 2005, and वहीं पर शालिनी खेरा आते थे. And so both of us have lovely satsangs. I already shared my satsang. So over to Shalini now, and let's do Guruji's Mahima. Jai Guruji. Shalini, please take over. Shalini, can you hear? Shalini? I think Shalini. she has dropped out. We'll just see again. हाँ जी. आंटी प्लीज इनिशिएट करें। ओके. सो गुरुजी महाराज के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, बिकॉज ही इज नॉट ओनली गॉड ऑफ दिस प्लैनेट बट ऑल द पैरेलल यूनिवर्सेस. ब्रह्मांड में जितने 16 आई मीन व्हाटएवर जितने ब्रह्मांड हैं उतने गुरुजी हैं, एंड गुरुजी इज द टॉप ऑफ ऑल ऑफ दैट. बिकॉज गुरुजी इज नॉट ओनली शिव, ही इज महाशिव, ही इज द मालिक, ही इज द मास्टर ऑफ ऑल द यूनिवर्सेस. एंड we are so fortunate to be in his sharan, because Guruji के पास अगर आप आ गए हैं तो trust me, there is nothing that you need to do. Everything in our life that we have is his grace. और आप देखेंगे when you surrender to Guruji, how your life moves in a beautiful way. It's not that कि आपकी life बहुत easy है या there are no hurdles. Of course you will have hurdles, you'll have issues also, but then they'll be sorted out so easily. And this is just the 10% of what we are supposed to have. So गुरुजी के पास आकर आप देखेंगे आपकी चीजें बिल्कुल sorted हो जाती हैं. Priority is his. पहले उन्होंने किस front पे आपको correct करना है. And that's my own experience. Guruji first blesses you with life, and then he blesses you with the health, and then everything is a side effect. वासन अंकल, शायद शालिनी आंटी का आपने अनम्यूट नहीं करा है, चेक कर लो. So Guruji is so amazing, and
he can just transform your life in a complete 360 degree. You know, he metamorphoses. आप जब गए थे गुरुजी पे, आप देखेंगे that your life is not the same. Your problems are not there. So the issues that we were struggling with are no more. And he gives you the strength to bear and to live this life in a most beautiful way. So Guruji के आप अगर शरण में आ गए हैं, so there is nothing to worry, because trust me, if he is with you, let the whole world be anti you. There is nothing to worry, nothing to feel low about. He peps you up, he gives you the energy, the aura to stay happy. And Guruji says, always used to say that be updated, be modern in the sense, आपको you should be upgraded. आप इधर महाराज के पास आते हैं, गुरु जी के मंदिर जाते हैं, तो be best dressed, because आप अपने गुरु से मिलने जा रहे हैं. So you have to be as good dressed as you go on a wedding, and you have to be the bestest in your bestest attire, because हम इतनी ब्यूटीफुल जगह जा रहे हैं जो कि हम कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकते, बिकॉज़ हम भगवान को कोई नहीं जान सकता है। जितना आप जानेंगे उतना और जानने को मिलेगा, दैट्स आवर गुरुजी। सो फील लकी, फील हैप्पी दैट हम उनके पास हैं, एंड दैट्स हाउ ही चेंजेस द कंप्लीट थिंग, यू नो, कंप्लीट, he changes your life, he rewrites your destiny. I hope Shalini is there now, and over to her now. Shalini, please take over. Shalini, are you able to hear me? Vasan uncle, just check it, please. I'm checking that she had joined and she was dropped again. No, she said कि उनका अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे आप. She messaged me. आप एक बार चेक कर लीजिए. शालिनी का तो आ रहा है कि शी इज ऑलरेडी जॉइंड ग्रुप में, पार्टिसिपेंट्स में है. जय गुरु जी, नाउ शालिनी आंटी नाउ प्लीज नाउ अपने आप को अनम्यूट अब करें. अनम्यूट किया. नो, अब अनम्यूट हो गया है. ओके शालिनी, प्लीज टेक ओवर. ठीक है, अब अनम्यूट हुआ है. संगत इज वेटिंग. या ओवर टू ठीक है, यू. डन. ओके. जय गुरु जी की संगत को ढेर सारा प्यार और प्रणाम. और गुरु जी हमेशा नमस्ते कहते थे. गुरु जी को भी ढेर सारा प्रणाम. एंड थैंक्स टू द मल्टीलिंगुअल ग्रुप एंड अनु आंटी एंड वासन अंकल फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट गुरु जी. मैं थोड़ा सा गुरु जी के बारे में बताऊंगी. गुरु जी रसक बैरागी गुरु हैं. गुरु जी हमेशा कहते थे रसों में रह के बैराग. मतलब आपने जिंदगी की सारी खुशियां एंजॉय करनी है और सोल से, अंदर से उनके साथ कनेक्टेड रहना है. दिस इज अ प्लेस ऑफ सोल प्यूरिफिकेशन. एंड गुरुजी सेड, एक बारी मैंने गुरुजी को सुना था, सूरज मैनू नमस्कार करके उगदा है, जस्ट इमेजिन हिज पावर. शिव ओमकारा आरती करके भी गुरुजी को हम छोटे स्थान पे बिठाते हैं. वो माँ शिव हैं, इस दुनिया के मालिक हैं, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं. और कहते थे जहाँ यहाँ मत्था टेकता है उसका सचखंड में मत्था टेकता है. और गुरुजी हमेशा बोलते थे शिव ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋ. तो अब बैक टू माय सत्संग. आई हैड आई हैड टू मच इनटू नेगेटिव थॉट्स. एंड 2002 में मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे गई थी. कपल ऑफ टाइम्स आई हैव शेयर्ड माय सत्संग आल्सो. एंड जब उन्होंने मुझे बताया था कि 2005 के बाद मेरी जिंदगी नहीं है, एंड आई न्यू कि जब जिंदगी का सबसे बुरा टाइम आता है या चल रहा होता है तो गुरुजी आपको घर से उठाते हैं. एंड आई वाज वन सोल दैट वाज पिक्ड अप फ्रॉम होम. द प्रॉब्लम वी हैड वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि वो ना कभी प्रॉब्लम होती, ना कभी गुरुजी हमें मिलते. जब पहली बार ही गुरुजी मेरे को मिले तो मैंने सोचा था वो कि बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर एक चाइनीज चोला पहना हुआ था. बट इन एम्पायर स्टेट छोटा मंदिर, there was such positive vibrations that first time when I saw Guruji, भगवान नहीं सोचा था पर ये पता था कि सही जगह पे आ गई हूँ. And I got an opportunity to speak to Guruji for the first time. I told Guruji मेरे दिमाग में बहुत negative thoughts आती हैं, मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती. तो गुरुजी ने बोला तो सत्संग सुनिया कर. And that is how my journey with Guruji started. मैंने वहाँ बहुत सारे सत्संग सुने. गुरुजी बीच में शब्द कीर्तन रुकवाते थे और किसी ना किसी को अपना सत्संग शेयर करने के लिए कहते थे. So the couple, and then
जब मैं गुरुजी के पास जाती रही, बट जब ज़िंदगी का सबसे बुरा टाइम आया तो गुरुजी ने बुलाया। एंड वन मिडल ऑफ द नाइट आई थॉट आई एम कोलैप्सिंग, आई एम डाइंग, एंड आई थॉट दैट टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ। मैं गुरुजी के पास जाती रही लाइक अ मैड वुमन। जो मुझे जानते हैं, अनु को भी पता है दैट आई वाज़ लाइक अ डेड बॉडी, लाइक अ वेजिटेबल। आई कुड नॉट इवन मूव वन स्टेप, एंड मुझे ऐसे लगता था दैट आई एम कोलैप्सिंग, आई एम डाइंग। मैं दिल्ली के हर डॉक्टर पे धक्के खा चुकी थी। कहीं से मुझे कोई आराम नहीं था, कोई मेडिकेशन मेरे पे वर्क नहीं करती थी। मेरे को लगता है कि वो शायद कर्मा था, एंड आई हैड अ वेरी बैड हेल्थ कर्मा, एंड गुरुजी वाज़ कटिंग माय कर्मा। एंड 1 साल मैं दिल्ली के हर डॉक्टर के पास विद गुरुजी's पिक्चर इन माय हैंड लाइक अ मैड वुमन जाती रही। एंड वंस इन द संगत आई स्टूड अप, बिकॉज़ देयर आर सिचुएशंस इन लाइफ वेयर यू आर नॉट इवन अशेम्ड, एंड यू आई जस्ट स्टूड अप इन द संगत। आई सेड गुरुजी, या तो मुझे जाने दो या मुझे ठीक कर दो। एंड वन एपिसोड बिफोर दैट आउटसाइड एम्पायर स्टेट मुझे लगा कि माय हार्ट इज गोइंग, आई एम कोलैप्सिंग, आई एम सिंकिंग। एंड वन संगत टुक मी इनसाइड टू गुरुजी। आई सेड गुरुजी, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं जाने वाली हूँ। गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तू लंगर खा। मैंने with trembling hands I took langar, but I did not get rid of my problem. Next visit, जब when I came to गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे और मैं कोने पे बैठी हुई थी, तब गुरुजी का हुक्म था जिथे बैठे हो उत्थे अरदास करो। तो मैं टेलीपैथिकली गुरुजी से बात कर रही थी। आई सेड गुरुजी, या तो मुझे ठीक कर दो या मुझे जाने दो। ही नेवर कॉल्ड मी, ही नेवर स्पोक टू मी। देन इन द लास्ट आई सेड गुरुजी, मैं अब कभी आपके पास नहीं आऊंगी। ही एट वंस कॉल्ड मी एंड ही सेड लोटा ब्लेस करा लें। गुरुजी ने मेरे को 2 लोटे ब्लेस करके दिए थे। कह रहे थे अद्धे नाल पी लें ते अद्धे नाल नहा लें। As I started using the lota, my health started improving, and I was such a fool thinking कि लोटा काम कर गया। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी अपनी ज़िंदगी से मुझे ज़िंदगी दे रहे थे। अपनी पॉजिटिविटी से मुझे पॉजिटिविटी दे रहे थे। एंड एक दिन जब मैं संगत में आई, यही मेरा सत्संग लाइट ऑफ डिविनिटी में है, एंड I got an opportunity to talk about it and I narrated also in a while. And जब मैं गुरुजी के पास आई, I was shocked what he told me. He said, इत्थे आ, एक गल दसा, अज तेरी 13वीं हैगी। He had told the date of my death. He said, बरसी है जा ऐश कर कल्याण कर आ गई है new life. So what I am today is all his kripa, all his grace, and I can vouch for it. There is no God above him. गुरुजी से ना ऊपर कोई शक्ति है, गुरुजी से ना ऊपर कोई भगवान है। और अगर गुरुजी आपके साथ हैं तो आप 100 हो, और गुरुजी आपसे अपना सिर पे हाथ हटा लेते हैं तो आप -0 हो। गुरुजी के यहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल शब्द चलता था, देरे नाम संतोखिया, उतरे मन की बुक, बिन गुर जे मंगना, सिर दुखां ते दुख। तो गुरुजी ने सिर्फ एक ही चीज बताई कि अगर आपकी प्रेयर है तो बहुत छोटी सी प्रेयर होनी चाहिए, सिर्फ भगवान से भगवान को मांग लो, और जिंदगी में कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मांगने की। बिलीव इट और नॉट, गुरुजी को मिलने के बाद मुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अगर मैंने सच्चे मन से कुछ गुरुजी से माँगा, जो मेरे लिए अच्छा था, वो मेरी झोलियों में भरा उन्होंने, खुशियाँ भरी, सब कुछ दिया। आज जो मैं हूँ, वो गुरुजी की दया और गुरुजी की कृपा से हूँ। एंड 100% फेथ इन गुरुजी इज़ 100% रिज़ल्ट विद गुरुजी। यहाँ विश्वास काम करता है, नथिंग वर्क्स, एंड लव फॉर हिम। There are little episodes I will narrate today what I learned, what Guruji Sh- made me learn. आई तो बहुत बड़ी बात। हाँ अनु बोलो। Shalini, sorry to interrupt. हाँ Do tell बिल्कुल। us how Guruji used to bless us and हमें उन्होंने कितनी जगह पे भेजा, कितने लंगर प्रसाद खिलाए, and how, हाँ how was his way of working. So do tell everything and how he make या you friends and how he joins people, how he makes them together, how he separates people together. Do हाँ tell हाँ, this वो all मैं आई एम this कमिंग टू also. दैट ओनली अनु। मैं Yeah, सारा yeah. वो बता रही हूँ अब आफ्टर माय सत्संग कि व्हाट Yeah, ही sure. मेड मी लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Yeah, ठीक है over ना? to you. Okay. हाँ, तो ही व्हाट ही मेड मी। एक दिन मैं एम्पायर स्टेट में थी, एंड वन आंटी had gone to some astrologer, and there was a big hangama. What I'll relate today is what he wants out of us, what he expects out of us, his sangat. तो गुरुजी कभी डायरेक्टली कुछ नहीं बोलते थे। अगर आपके लिए था और आपको सुन गया तो वो आपके लिए था, लेकिन अगर नहीं सुनाई दिया तो आपके लिए नहीं था। इट वॉज ऑलवेज एन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। सो वंस आई एंटर्ड एम्पायर स्टेट, एंड आई रिमेंबर वन लेडी हैड गॉन टू सम एस्ट्रोलॉजर, एंड शी वाज गुरुजी सेड ਸਾਰੇ ਕਲਿਆਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਭਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਫਾ ਹੋ। तो this was a communication through Guruji that when we are under his sharan, अब हमारा हिसाब किताब किसी पंडित या एस्ट्रोलॉजर से नहीं होएगा।
किसी भी उससे नहीं होएगा, सिर्फ गुरुजी के हिसाब से होएगा. Then again I remember Anu, still I remember that satsang that Anu was wearing a gemstone, and Guruji ne, she wanted everything. If you listen to her satsang, when she went to Guruji, she said कि मेरी life A to Z सब कुछ चाहिए था. She was into depression, and now she says that she can give depression to people. So look at the confidence she got. And Guruji just told her to remove the gemstone, and she instantly Guruji ka hukum mana aur usne nikal diya. And that's what she told in her satsang, that her life took a 360-degree turn. So another indirect communication that we are not supposed to wear any gemstone if we are going to Guruji. ठीक है. And then again I remember गुरुजी हमेशा कहते थे भुखे रहन तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਰੱਬ ਭੁखे रहन तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਰੱਬ नहीं मिल सकता. And lot of people were fasting. नवरात्रे भी गुरुजी लोग रखते थे, और गुरुजी उनके फास्ट कट करा देते थे, और वो हमेशा कहते थे लंगर खाओ, लंगर में तुम्हारी ब्लेसिंग है. बिलीव इट और नॉट, मैंने गुरुजी के मिलने के बाद कभी करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखा, बिकॉज लाइफ देने वाले गुरुजी हैं. कोई व्रत या फास्ट से गुरुजी हमेशा कहते थे मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा. सो बेसिकली वी हैव टू फोकस कि हाउ हमें अपनी जिंदगी कैसे लीड करनी है. सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं और दिल से उनको प्यार करना है. उनको हमारे सिर्फ प्यार की जरूरत है. Another auntie was into past life regression, and in front of me she was told to stop it. He said पुट्ठे कर्म कर दियो, पुट्ठे कम कर दियो, फिर मेरे को आंदे हो. And then she was told to stop past life regression. Reiki Guruji ने मना करी थी. Then another auntie was into Buddhism chanting, I remember, and Guruji told her to stop chanting. And then उनके घर में बहुत बड़ा दरबार था जिसमें वो बुद्धिज्म का उन्होंने सेंटर बनाया हुआ था. वो गुरुजी के दरबार में कनेक्ट हुआ था, कन्वर्ट हुआ था. Then again I remember one of my very close friend, her name is also Anu, and I met her in a couple of months in the Bada Mandir, and I asked her, I said, do you do tarot? कहती नहीं, गुरुजी ने मना किया था. तो मेरे सामने गुरुजी ने उनको मना किया था कि टैरो छड़ दे. So these are little teachings that Guruji taught us कि अगर हम गुरुजी के पास आ रहे हैं तो हमें एक क्लीन पेपर देना है, एक प्लेन पेपर देना है, and he will write your script. And the script Guruji writes is the best suited script for you. मेरी इंटायर लाइफ इज अ सत्संग. गुरुजी ने मेरे को 3 बारी लाइफ दी है, और बता के और बिना बताए पता नहीं कितनी बार मेरी लाइफ एक्सटेंशन दी है. सो आई एम इनडेटेड टू गुरुजी, एंड आई ऑलवेज प्रे टू हिम गुरुजी कि अगर मेरे से कुछ गलत ना हो जाए, जो सांस मैं लेती हूँ वो गुरुजी की दी हुई है. एंड गुरुजी ने हमें इतना अमेजिंग तरीके से सिखाया कि किसी की नेगेटिविटी मत सुनो. कहते थे तुम्हारी पॉजिटिविटी ले जाएगा और नेगेटिविटी छड़ जाएगा. अगर हमारा एज अ संगत, हमारा अगर कोई अपनी नेगेटिविटी सुना रहा है तो उसको दूर कर दो. उसको गुरुजी के बारे में बताओ, गुरुजी के सत्संग के बारे में बताओ, गुरुजी के मंदिर लेके जाओ. वो भी गुरुजी कहते थे 1 या 2 बारी तुसी लेके जाओ एज अ संगत, बाकी गुरुजी जाने और उसकी जर्नी है. हमेशा बोलते थे कि संगत इकट्ठी करो, संगत लेके आओ. ही टोल्ड मी 5000 संगत ला तत् कल्याण हो. सो दिस वाज अ ड्यूटी गिवन टू बी माय गुरुजी कि मुझे संगत इकट्ठी करनी है. नॉट दैट कि मेरे जैसे बेवकूफ लोगों को गुरुजी की जरूरत है कोई संगत इकट्ठी करने के लिए, बट उनका एक ये तरीका था ब्लेसिंग देने का. सत्संग करता है उसका भी कल्याण होता है, जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण होता है. ये सिर्फ उनका एक तरीका था. ना हम कोई बहुत बड़े भक्त हैं, बे औकात के लोगों को गुरुजी ने औकात दी हुई है. एंड विद हिम वी आर 100, बट अगर गुरुजी अपना हाथ हटा देंगे तो हम 0 हैं. सिर्फ ये उनका एक तरीका था ब्लेसिंग देने का. जो सत्संग करेगा उसका भी भला होगा, जो सुनेगा उसका भी भला होगा, वरना गुरुजी एक चुटकी में करोड़ों की संगत इकट्ठी कर सकते थे. Guruji is the greatest God, and so many times there are couple of Guruji हमें he had beautiful ways. अगर किसी की कोई डेथ लिखी होती थी तो गुरुजी उसको कहते थे जा सूट खरीद ले. पता था कि पैसे तो कहीं ना कहीं जाने हैं, जा सूट खरीद ले, जा सिंगापुर घुमा, जा कोई बीमारी लिखी है तो जा सिर्फ हॉस्पिटल उसको देख के आ जा. सो ही हैड ब्यूटिफुल वेज ऑफ काटोइंग आवर कर्मा. एंड दिस इज द प्लेस वेयर योर जन्मों की पंड इज क्लीन्ड. जब आप यहाँ आते हो तो आपके कर्म कटने शुरू हो जाते हैं. जन्मों की पंड जो हमने इकट्ठी करी हुई है वो गुरुजी साफ करते हैं. फिर हम भांडा, गुरुजी कहते थे इत्थे भांडा साफ होता है, और हम भांडा बार बार अपना खराब करते हैं. फिर गुरुजी उसको प्योरीफाई करते हैं, क्लीन करते हैं. गुरुजी
ने बहुत सिंपल तरीका बताया था उनसे कनेक्ट करने का। गुरुजी कहते थे मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। गुड मॉर्निंग विद गुरुजी, गुड आफ्टरनून विद गुरुजी, गुड नाइट विद गुरुजी, ईटिंग आउट विद गुरुजी, एंड यू विल फील दैट 24/7 एक महाशिव की शक्ति आपके साथ चलती है। लोगों ने बहुत भ्रमों में डाल दिया, ऐसे भोग लगाओ, वैसे जोत जलाओ। जोत जलाने, भोग लगाने से जो इतनी बड़ी दुनिया को संभाल रहा है, क्या उसको हमारी भोग की जरूरत है या हमारी अगरबत्ती और जोत की जरूरत है? उन वो he is the provider, he is the ultimate provider, so we are all beggars in front of him, and what can one beggar give to the other? So गुरुजी ने बड़ा सिंपल तरीका बताया था, सिर्फ आपने मन से उनको याद करना है, मन से उनसे प्यार करना है, जोत अंदर जलानी है। और जो गुरुजी ने मंत्र जाप बनाया, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, किसी भ्रम में नहीं बांधा। हम लोग भ्रमों में बड़े हुए हैं कि सुबह उठो, पहले जोत जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, नहाओ। नो, ही सेड अंदर अंदर पाठ करो। अंदर अंदर किसी को सुनाई बना दे कि तुम ये पाठ कर रहे हो। और ये पाठ इतना इफेक्टिव पाठ है कि एक डेड बॉडी भी अलाइव हो सकती है, क्योंकि मैंने अपने घर में ही लोगों को इस से डेथ बेड से भी उठते हुए देखा है। ये महामृत्युंजय से भी ऊपर का मंत्र है। फॉर कलयुग पीरियड ही सेड माड़ा टाइम आएगा, चंगे कम करो, चंगे इंसान बनो। एंड ही ऑलवेज सेड किसी का मन मत दुखाओ, किसी को हर्ट मत करो, स्टार्ट फॉरगिविंग पीपल, एंड व्हेन यू विल स्टार्ट फॉरगिविंग पीपल, and he said past is dead, never think about it, present is my gift, enjoy it, future का ਤੁਹਾਨੂੰ पता है या मैनू पता है। so we have to, हम अगर उनको डोर उन पे छोड़ देंगे, surrender is a very big word but is a very small word but with a deep meaning। सरेंडर मीन्स जो हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, जो हो रहा है उनकी रजा से हो रहा है, जो हो रहा है उनका प्रसाद है, चाहे अच्छा या बुरा। लेकिन बिलीव इट, अगर आप गुरु जी पे हमेशा विश्वास रखोगे, देखना आपकी कैसे जिंदगी चेंज हो जाएगी। एंड प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आएंगी, छोटी बड़ी, लेकिन वी हैव अ रेन कोट, वी हैव स्टॉर्म है, रेन है, but we have an umbrella, we have shelter, we have 24/7 protection, and that is our Guruji Maharaj। so अगर हम उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे और उनसे प्यार करेंगे, सिर्फ गुरुजी आपका भाव देखते हैं, उनको हमारी डेकोरेशंस की, हमारे सत्संग की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो आपका मन का भाव देखते हैं। और हमेशा एक लाइट ऑफ डिविनिटी में ही बहुत ब्यूटीफुल सत्संग था, जब जनरल कपूर ने गुरुजी से पूछा था व्हाट डू यू नो अबाउट लाइफ, एंड ही वाज जस्ट क्वाइट, एंड देन गुरुजी सेड all religions are one, God is one, if you cannot help anybody, don't harm anybody, and out of your hectic schedules in this materialistic world, टेक आउट सम टाइम फॉर डिविनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो गुरुजी ने हमेशा यही सिखाया, तभी गुरुजी शाम को सत्संग में बुलाया करते थे कि अपनी वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट करके आओ। सबसे बड़ा पाठ कहते थे, तुम अपने बच्चों को, अपने घर को संवारो, अपनी फैमिली को संवारो। ये नहीं कि हम सेवा करके मंदिर भागते रहें और घर में कोई बीमार है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर फैमिली, यू हैव टू लुक आफ्टर योर फैमिली, योर चिल्ड्रन, योर ओल्ड पीपल एट होम। एंड रशिंग टू द मंदिर एंड सत्संग हैज नो मीनिंग if you have an old person sitting at home who's not well। क्योंकि मेरे सामने गुरुजी ने बोला था, एक आंटी आई थी और उनकी मदर इन लॉ बहुत बीमार थी, एंड गुरुजी सर इत्थे की कह रही है, जा अपनी सस कोल जा। सो गुरुजी ने कभी समझाया नहीं, उन्होंने उन्होंने कभी कोई प्रवचन नहीं दिया, उन्होंने एक इनडायरेक्टली सबको समझाया कि कैसे। एंड देन फॉर अमृत वेला सत्संग, वी आर हैविंग लॉट ऑफ अमृत वेला सत्संग। नॉट दैट कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना बुरी बात है, बट बिकॉज ऑफ योर मेडिकल कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज ऑफ your small children going to school, your office, everything, you cannot sambhalo Amrit Vela. So never feel guilty about it. If you can do, well and good, because 3 to 5 is a beautiful time to connect to the divinity। लेकिन मेरे सामने एक सत्संग हुआ था और एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी कि उन्होंने गुरुजी से पूछा था, गुरुजी अमृत वेला की है। गुरुजी से जिस वेले तो अपने गुरु नु याद करे, वही अमृत वेला है, वही सेवा है, वही सिमरन है और वही भक्ति है। तो गुरुजी ने ये सिखाया कि जिस समय आप अपने गुरु को याद करो, वही अमृत वेला है। एंड देन अगेन आई रिमेम्बर, गुरुजी इज अ प्रैक्टिकल गुरु, उन्होंने सब कुछ प्रैक्टिकल सिखाया और इस दुनिया में आके उन्होंने बताया कि भगवान है। कलयुग के लिए ही सेड कलेक्टिव पार्ट इज द नीड ऑफ द आवर। जब हम इकट्ठा बैठ के मंत्र जाप करते हैं तो हमारा जो ऊपर है यूनिवर्स में जाता है और वो सबको इन टर्न ब्लेसिंग करता है। शिव पुराण पढ़िया करो, एंड आई सी सो मेनी प्लेटफॉर्म्स हैपनिंग जहाँ पे शिव पुराण के प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे शिव पुराण लोग पढ़ते हैं। देन अगेन लाइट ऑफ डिविनिटी
जो ग्रंथ है, इसका भी मैं एक छोटा सा सत्संग बताती हूँ। जब मैं गुरुजी के पास गई थी, गुरुजी ने बोला अपनी संगत लिख के ला, और मैंने आई वाज सो, मतलब आई हैड टेकन गुरुजी फॉर ग्रांटेड एंड आई ऑलवेज से सॉरी टू गुरुजी, क्योंकि उस दिन मैंने नहीं लिखा था। अगले दिन फिर मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने कहा तू सत्संग नहीं लिख के लाई। मैंने एक पेपर लिया और मैंने गुरुजी को पकड़ा दी। ही सेड इस तरह नहीं लाईदा, तू सीडी विच ला। तो मैंने गुरुजी को नेक्स्ट वीक जब मैं गई तो मैं सीडी में लेके आई, एंड तब गुरुजी वाज सो हैप्पी एंड ही पुट दैट CD in his pocket and he was smiling. And I remember that those satsangs, I didn't even know कि Light of Divinity बनेगी और वो सारे सत्संग बुक में उसमें आएंगे। लाइट ऑफ डिविनिटी भी बहुत बड़ा ग्रंथ है, ये महाशिव शिव पुराण से भी ऊपर का ग्रंथ है, क्योंकि इसमें इतने ऑथेंटिक सत्संग्स हैं जो गुरुजी के टाइम के हैं, गुरुजी के ब्लेस्ड सत्संग्स हैं। So not that कि every satsang is a blessed satsang, but this is an authentic book of Guruji, of Guruji's time. So anything Anu, कुछ बोलूं बताऊं तो बता, you just tell me. You are so beautifully telling about Guruji. It's so amazing. And it's like our revision. And there are so many things to learn. आप जो कह रहे हो, it's so true. And whatever you want to say about your own experience, and just tell na how he made us friends also one day when Okay, I've okay, gone to all right, Goa. okay, ठीक है। Yeah. Anu, हाँ, Anu was in Goa, I remember, and that time I hardly knew Anu. हम उसको मिलते थे मंदिर में, but as हमको इतने we were not very knowing each other too well. But जो हमारी लाइफ में आ रहा है, today we are like soul sisters. गुरुजी ने हमारी soul connect करी हुई है, and I really know that whatever सुख दुख I have in life मैं उससे share कर सकती हूँ, because she blessed me with her and she is such a beautiful soul. I cannot even imagine, because जो सुख दुख है मैं सारा उससे कर सकती हूँ, अपनी मन की बात। एंड मिडल ऑफ द नाइट भी मैं 12 बजे भी उसको कॉल करूंगी तो वो मेरा कॉल उठाती है। सो दिस इज अ रिलेशनशिप दैट गुरुजी हैड ब्लेस्ड अस फॉर। नाउ आई रिमेम्बर दैट गुरु अनु गोवा गई हुई थी और मैं गुरुजी के पास गई थी, एंड गुरुजी तब इंदर शर्मा आंटी की डॉटर, सिटी वॉक वाले जो अंकल हैं उनकी डॉटर की उनके बेटे की शादी के कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। देन उनके हाथ में कार्ड्स थे एंड ही गेव मी द कार्ड। ही सेड, उन्होंने कह रहे की ना है तेरी सहेली दा। मैंने कहा कौन सी सहेली? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड गुरुजी किसके बारे में बात कर रहे हैं। देन आई सेड अनु। कहते हाँ। देन ही रोट अनु मुंजाल एंड ही गेव द कार्ड टू मी। ही सेड उसनो जा उसनो कार्ड दे दें। एंड दैट वाज द लास्ट वेडिंग दैट गुरुजी had called us for when he was in the physical form. That was sometime in February, and we all attended that wedding in Guruji's presence. So that was the time, and he said, "Teri seli." मैंने कहा कौन सी seli? Teri seli, Anu aunty, जा उन्हें कार्ड दे दें। So this was again a blessing, and how she came into my life like a blessing, and so. And I remember Guru Anu was a medium. That time my family was not believing in Guruji too much, and we would not chup ke we would go to Guruji's temple. My husband was not a believer that time, and then he would say तुम ऐसे ही अपना पेट्रोल वेस्ट करते हो. This is a very personal thing, and he said आज मैं अनु को बता रही हूँ, शायद उसको भी नहीं पता होएगा ये बात। तो मैंने कहते बड़ा पेट्रोल वेस्ट करते हो तुम, मंदिर जाते हो फ्रॉम पंचशील पार्क टू सदबरी, तुम्हें क्या मिल रहा है यहाँ पे? एंड नाउ टुडे माय हस्बैंड इज अ बेटर बिलीवर इन गुरुजी, एंड सो इज अनुज हस्बैंड। दे वर नॉट बिलीवर्स इन गुरुजी when they initially went, but today they are much more believers than what we are today. So he said he used to tell, and they were little tests, but Anu har वक्त मुझे, she would know how to drive and I would wait for her every Monday. हमारा ऐसा साथ बना कि हम हर मंडे अनु मुझे पिक करती थी, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हर। गुरुजी ने एक जरिया बनाया था, लेकिन फिर भी इतने प्यार और इतनी शिद्दत के साथ मुझे हर मंडे लेके जाना, गुरुजी की ब्लेसिंग तो थी और अनु के को भी एक स्पेशल थैंक्स था। एंड रियली आई थैंक यू अनु फॉर for that time, the moments we spent together, the besties we became because of Guruji, and every satsang we attended together. मतलब ऐसा कोई दिल्ली का सत्संग नहीं था कि जो मैंने और अनु ने ना इकट्ठे अटेंड करा हो। दिन में अगर 3 सत्संग होते थे तो हम 3 सत्संग में भी जाया करते थे। तो गुरुजी ने इतना अच्छा बॉन्ड बना दिया, क्योंकि उनको पता था कि शायद मेरे हस्बैंड मुझे अकेले ना जाने दें, बट व्हेन अनु वाज देयर ही वाज आल्सो फ्री दैट आई एम विद हर बिकॉज ही ट्रस्टेड हर। सो ये सब गुरुजी का एक जरिया बना हुआ था हमको मिलाने का, और
today I'm, दिल से अनु का भी thank you है and गुरुजी का तो है ही thank you because No, thank you to me. It's only नहीं, Guruji no, that of course I know, he of course I know, ये तो मुझे पता ही है, he लेकिन got चलो us ये भी connected. अच्छे इंसानों से मिलवाना भी एक भगवान की मर्जी So होती है. it's That is, likewise. It's likewise. yeah, okay, You know. okay, so Acha, yeah, one more thing. You have to read हाँ, out your satsang from the okay now, divinity. ठीक है, okay, Over to now you I for will reading. start. ठीक है, Okay. Yeah. okay, Yeah. I'll start reading now. ठीक है, Done. ठीक है. Guruji is the Almighty. He is God. Before I came to Guruji, I was very negative person. But after taking refuge under him, I have developed a positive frame of mind. Now I feel that I'm protected and sheltered. My husband, the son of a prominent insurance man, was surprised when he visited Guruji for the first time. Guruji told him his father's name, pointing out to him that he was the son of Khera, well known in the field of insurance. As we kept going to Guruji, many of my husband's business problems were sorted out. 2 years ago, I too bore testimony to one of the Guruji's many healing miracles. I had a serious problem. I could not see clearly from the corner of my eyes. I visited many eye specialists. My retina was tested and many other tests were carried out, but all the results were normal. Doctors were not able to diagnose the problem. At last, I turned to Guruji. Guruji told me to bring a copper tumbler and drink water from it. From the day I started using the tumbler, my vision became fine. But last year, suddenly, I had fainting spells. I went to specialists who dealt in spinal injuries, to serial neurologists and orthopedicians, but they were unable to help me. After suffering for 4 months and from one specialist to the other, I was fed up. I, I got all the scans and the MRIs done, but the problem persisted. A severe depression settled inside me. I was bedridden and unable to do anything. I went to an Guruji with my problem. He told me that I was unable to sleep during the night because I had severe vibrations all over my body. He told me that he has blessed me and I should have Langar Prasad. Slowly with his blessings, I was soon relieved of my ailments. When I came to Guruji after he had healed me, he called me and he had blessed me with new life. My rebirth was solely due to Guruji's grace. My husband too had a serious back problem. He was under medication for months, but his back pain was increasing day by day. We went to several hospitals, Wimhans, the Spinal Injury Center, Rockland, but doctors were unable to arrive at any diagnosis. The pain was so severe that for a couple of months my husband was unable to sleep. I went to Guruji and told him about it. Guruji inquired about my husband's condition the next time I visited him on a Thursday. I told him that he was still not fine. Guruji asked me to stop all medications and to start giving him turmeric milk at night. The night he started taking turmeric milk, believe me, my husband's backache was thing of a past. On 31st of January, when we had again an opportunity to Guruji's darshan, he told us that he had blessed us with from now on my husband would not have any problem. Since then, my husband was never experienced any pain. He says that he feels Guruji has given him superpowers. Recently, on 5th January 2006, he traveled to the US. I was worried that he was traveling alone, but believe me, he had no pain during the entire journey. Guruji has totally cured him. Since I have come to Guruji, my life has been transformed. Guruji guides you at every step of life. You just have to think about him from his heart, from your heart, and Guruji is there for you. We all are very, very lucky that Guruji is with us. Jai Guruji, and that is the content that was in Light of Divinity. That's over, Shalini, now? You have read it, Yeah. no? Yeah, I've read it. So I hope you all must have had great time listening to Shalini's beautiful satsangs, as they were directly from the heart and so pure. So thank you, Shalini. Thank you, Vasan uncle. And thank you, the entire Sangat, for giving your ears. And honestly, we all are so fortunate to hear it directed from the horse's mouth, because जो गुरुजी की purity जब बंदा खुद अपना सत्संग करता है आती है, that has no parallel. So thank you all once again. Jai Guruji.
and Shukrana Guruji. Thank you, Shalini. You were amazing as always, and blessings to all of you and to me as well. So thanks again. Thank you, Guru Parivar. Thank you, Guruji. Shukrana Guruji. Thank you. Uncle, Thank you, over to you, Vasan please. uncle. Yeah. Thank you, uncle, and thank you, Anu, and thank you everyone who was on this platform. And Multilingual has done a fantastic job by getting us all together. And I'm so sorry to Vasan uncle because I was not able to take his calls for a couple. That is really from the heart. I'm saying sorry for that because my mother passed away. Then there are a couple of things happening in my life. But then today I thought ki nahi, I have to do my seva. And again, Guruji ki decided time hota hai, decided सब कुछ डिसीजन इज वी थिंक हमने करा पर कराने वाले करने वाले सिर्फ गुरुजी हैं तो शायद आज की ही डेट हमारे लिए और यही टाइम था थैंक यू एंड लव टू ईच एंड एवरी पर्सन एंड नमस्कार एंड love to entire Guru Parivar, Guruji Sangat, and special thanks to Anu uncle and special from deep down of my heart to Guruji for his love and blessings. We really, really love you, Guruji, and there is no one above you. So thank you, Guruji, and Shukrana, Guruji. धन धन गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरु परिवार आप दोनों का बहुत आभारी है। अनु मुंजाला आंटी और शालिनी खेरा आंटी जी कि आपने ये सत्संग रीड किए हैं, सुनाए हैं और बहुत ही मैसेजेस दिए हैं संगत को। गुरुजी महाराज की इच्छा थी, यही आज्ञा थी कि आज ही के दिन आपने ये रीडिंग सेशन लेना था। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बने रहे। इसी के साथ ही अब हम सब गुरुजी महाराज से आज्ञा लेंगे।